she chose to impact the world. She chose to impact the underprivileged. So she comes from a family जिन्होंने social work में बहुत साल बिताए हैं. You had a settled career there for 5 years. What made you switch? I was in US. I studied there. In Rochester, I worked in Boston. फिर, like I said, I was on a student loan. वो उतारा और उतारते ही फिर then I said, okay, now I want to go back to India. What was that particular thing that touched you? Was it an emotional decision, a rational decision, or family influence decision? What was it? Definitely a emotional decision. What have been your struggles? Struggles की तो लाइन है, सब struggle ही था. I village is very tuned to technology और आगे कैसे बढ़ना है. Many people earned, so many people we could train. हमारी टीम डबल ट्रिपल हो गई. We somehow reached UN Women, and not just that, twice we have got award in 2022 Wow. and 2024 for the impact that we are creating. जिस औरत को अपने उससे बच्चे काम को कराओ. सिर्फ स्कूल भेजने के पैसे चाहिए कि मेरे जब बच्चा स्कूल जाए उसके पैरों में जूते हों, जिस औरत को ये चाहिए कि मेरे बस इतने पैसे हों कि मैं 3 टाइम का खाना आराम से दे सकूं, एक ठीक से छत हो, छत लीक ना करे. If you can hire that women, you will not have a problem of attrition. It is like identify the business aspect there and create a business out of it. Welcome to A Day Forward. आपने बहुत कम ये सुना होगा somebody saying that जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, बट जो मैं करने जा रही हूँ that may not impact me personally, but I will impact thousands and lakhs. Now ये आज के जो हमारे गेस्ट हैं ये वैसे ही हैं. इनका नाम है आर्या वैभव महाजन और इन्होंने 5 साल काम किया EY में, which is a dream company, the top 4 consultancies in the world, after her studies in the US. And after having such a sterling career, she chose to impact the world. She chose to impact the underprivileged. Now, she must have had an impact because she comes from a family जिन्होंने social work में बहुत साल बिताए हैं. So I'm going to introduce you to Arya, who's going to share with us about her life and how she and her family are impacting thousands. Welcome, Arya. थैंक यू विपिन. एक बार में सब कुछ बोल दिया. आप कुछ पूछो तो मैं बताऊं. एक बार में सब कुछ बोल दिया. हाँ, you summed up my life so well. No, that was just a little introduction of yours. Now you need to tell us, having a great career, नॉर्मली लोगों का यही होता है यार, ये 4 कंपनी में इंटर्नशिप दिला दो, EY में, PwC में, Deloitte में, और which is the fourth one, whichever is. हाँ, Deloitte, PwC, EY और KPMG. And you had a settled career there for 5 years. What made you switch? So like I said, you summed it so well. और to be more specific, EY में भी transaction advisory, उसमें भी valuations, which is like actually EY is amongst the best for. This is the best in transaction valuation. So we used to do mergers like बड़े बढ़िया वाले करते, सुकम करते थे, सुकम की brand value and all of that. And yeah, a lot of those good ones. मतलब कोई बड़ा फार्मा का ट्रांजैक्शन देख रहे होगे तो उसकी वैल्यूएशन हमने की होगी and all of those things. सन फार्मा और किसी का तो मर्जर. Which year was that when? अब इतना सारे सवाल ना पूछो यार. ईयर तो 10 years, like 15 years back, whatever time counts to be. हाँ, so 2010. Then that's what it is. Yeah. So हाँ, I'm not good with keeping tab on here, but ये मेरे को पता है कि 10 साल हो गए क्योंकि iVillage को. So it's 15 years back when I came back from US. For about 3 months I was looking for the best suitable fit, and then I got this job in EY. US means you were studying there. I was studying there. I worked there. I had gone on student loan, and I was very proud of the fact that I could get done with the student loan in. I'd done my MBA there, तो उसका loan लिया था. So I was in US. I studied there. In Rochester, I worked in Boston. फिर, like I said, I was on a student loan. वो उतारा और उतारते ही फिर then I said, okay, now I want to go back to India. I came back and then about 3 months I searched for the best fit. फिर Ernst & Young में मिली and तब से 5 साल काम किया. बहुत अच्छे से काम किया, मज़ा भी बहुत आया. My team was amazing because I worked in Delhi, then I got married and I moved to Mumbai. The same team I worked in Mumbai.
And then it was somewhere it came as a point कि ये ना number crunching अच्छी है, but and then I got a switch in that number crunching also was not very interesting after a point. I said ये then I got another very good thing thanks to my seniors at that time, Naveen Vora and one more person Parag Mehta. So उन्होंने मेरे को valuations में भी marketing दे दी. So I used to now connect with CEOs, etc. It was like the best that I can have. But still somewhere I can do more. There is more to my life than just being in EY or helping what is already done so well, helping it. थोड़ा सा मैं कुछ भी करूँगी चुटकू सा ही change आ पाएगा. So where can I really make a major difference? So it was about serving कि क्या कर सकते हैं, and then this thing came up. That like I was sharing, my mom called up. तो हमारा NGO है परदादा परदादी एजुकेशन सोसाइटी के नाम से, and then my mom called up and she said कि हम, so she was in the girls used to make, girls mothers they used to make hand stitched products and embroidery और in the schools girls स्कूल पहले लड़कियां बनाती थी, फिर लड़कियों को हमने 15 साल के बाद ये like 2000 में स्टार्ट हुआ था स्कूल. So we could tell them that importance of education is to study and don't worry about all these things. This can happen later. तो पहले आती ही सीखने की थी कढ़ाई. गांव का जो माइंडसेट होता है वो कि मेरी लड़की को खाना बनाना आना चाहिए, कढ़ाई आनी चाहिए, पढ़ाई तो कंट्रीब्यूशन ही नहीं है उसका. तो सो हमारा कंट्रीब्यूशन होता था कि आप पढ़ाई के लिए हम पढ़ाई करवाएंगे और आपकी लड़की को खाना बनाना सिखाएंगे, साफ सफाई सिखाएंगे, एंड हम एम्ब्रॉयडरी और ये सब सिखाएंगे. सो शी क्वालिफाइज फॉर, हाँ, दिस वाज इन द स्कूल हैपनिंग देयर. So she qualifies for शादी के लिए आइडियल पर्सन. हाँ, that was the qualification कि गांव में शादी कैसे होगी ना, ऐसे होगी, लड़की हुई है तो शादी होनी है, शादी होनी है तो ये 4 चीजें चाहिए. So तो हमने कहा ठीक है, पढ़ाई हम करवा रहे हैं और हम 10 रुपए भी देंगे उसके आने के, वो जो खेतों में जाके जो पैसे कमाती है वो उसको रोज के हम देंगे, खाना भी देंगे 3 टाइम का, कपड़े भी देंगे और आपके 3 क्राइटेरियाज भी पूरे कर देंगे. So embroidery started from there. Embroidery, stitching, all of those things started from there. And then हमारे घर में एक बड़ी अच्छी सी चीज़ है, वो जो भी करो बहुत अच्छे से करो. So my grandfather got the best embroidery teachers from all over the country. तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का सामान बनाते थे वो. अब जब उन्हें 15 साल हो गए, उन्हें ये समझ में आया that we can study and earn much more than this, and our life has more meaning than just this, than being here and studying and getting married basically. So then उनकी mothers ने कहा कि ठीक है, ये हम कर लेते हैं, इनको पढ़ने देते हैं. हाँ, इनको पढ़ने देते हैं. तो क्योंकि वो उसकी भी डिमांड आने लगी थी, वो भी बिकता था मार्केट में. So the mothers took over. That's when my mom got introduced कि मैं ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट को देख लेती हूँ. और it was then eventually called परदादा परदादी जॉब क्रिएशंस. अच्छा. And this was परदादा परदादी एजुकेशन सोसाइटी. So girls were studying and they हाँ, 2 verticals in the same building. Then BlackBerry came. My mom connected with Mohan Clothing. Okay. And Nitin Mohan. That was our first client, a proper B2B client. He said मेरे को ना जो मैं सूट कवर्स बनाते हैं हम लोग, वो बहुत अनऑर्गेनाइज मार्केट है, वो नई दिल्ली में नई सड़क पे बहुत अच्छे से नहीं होता है. आई वुड वांट टू मेक दिस इन अ बेटर ऑर्गेनाइज्ड वे. व्हाट इज इट दैट वी कैन डू? सो देन MDI से यहाँ ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, हाँ, ये जो है यहीं पे ही पढ़े हैं वो, उन्होंने MBA किया. तो वहाँ की टीचर रीच्ड आउट टू अस एंड दैट्स व्हेन माय मॉम वेंट एंड पिच्ड लाइक हम बनाएंगे आपके बैग्स, हमारी औरतें हम बनाएंगे. सो उन्होंने कहा ठीक है, एंड वी आस्क्ड फॉर अ स्मॉल वर्किंग कैपिटल. ही गेव अस 5 लाख टू स्टार्ट विथ. लाइक पर कैसे बनना है, क्या बनना है वो आप सोचो, आप सीखो, आप करो, आप जैसे भी होता है, मशीनें लगती हैं, लड़कियां लिख पाएंगी. आई वाज नॉट इन्वॉल्व. सो दैट वाज वन B2B ऑर्डर. एंड देन देयर वर लॉट ऑफ छोटे छोटे ऑर्डर्स जो हम बनाते थे. ट्रे बनाए, टेबल मैट्स बनाए, रनर्स बनाए, बेड कवर्स बनाए, जो मॉम बनाते थे उनके साथ स्मॉल टीम. And then she called me once and she said, you know what's happening here is मैं बना तो रही हूँ पर मुझे बेचना नहीं आता और हमारी पूरी टीम को बेचना नहीं आता. We don't know what avenues, like हम कहीं छोटे छोटे exhibitions लगा लेते हैं but somewhere I don't have the caliber to sell and I don't know how to lead this. So I said ठीक है, आप मेरे को भेजो. And I took a break, about a week's break from work, and and the products were, we all know, पिछले 3-4 साल से वो बना रही थी, वो गजब थे. हम सब दिवाली पे पूरी फैमिली और बहुत सारे लोग देते थे. हाँ, लेके खरीद के वी यूज्ड टू गिफ्ट.
and a lot of people other than us also used to buy, but then still it was not enough to run an organization. Yeah, पूरा yeah. हाँ सर्कल नहीं चल सकता था. So I said आप भेजो, and she sent it out, and I realized कि pricing में issue है. ये ना ये थोड़ा innate था कि मैंने कहा ये बिजनेस आता था. हाँ थोड़ा समझ में आता है कि हम फैब इंडिया से खरीदते हैं, ये क्वालिटी चलो मतलब इट टचेज 95% देयर, बट ये फिर भी हम क्यों इतना कम में बेच सस्ता ऑल दैट. सो आई डिड अ स्मॉल प्राइस करेक्शन एंड आई स्टार्टेड टू सेल टू सिटी बैंक, कोटक महिंद्रा, ये जितने भी वहाँ पे थे सब, उन सब में मैंने एग्जीबिशन लगाई फॉर अ वीक एंड आई कुड सेल आराम से. दैट्स व्हेन आई सेड ये इसमें मजा आ रहा है, दिस इज इन 1 वीक यू सोल्ड? हाँ सोल्ड, मतलब 3-4 बार मंगा लिया सामान. अच्छा. ट्रेन से लड़के को स्पेशली मॉम हैड टू सेंड समवन एंड सेंड इट टू ट्रेन बिकॉज एवरी डे आई हैड एग्जीबिशन, एवरी डे इट वाज सेलिंग आउट, लाइक एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ा था, इट वाज जस्ट सोल्ड आउट. सो आई सेड दिस सेल्स, या ये चलता है बढ़िया. एंड द स्टोरी, if you combine it with the story, it sells even more. People like to contribute. So I said this is working well, this is good. And then I said okay, let me take let me switch careers. अब मतलब somewhere दिमाग में आ गया था I have to switch career. ये नहीं चलेगा. But then I have very very major support from all corners, parents, husband, in-laws, and office में भी like sir said I don't know, I don't think I was contributing so well to the valuations team. But he said, you know what, nothing doing, 6 महीने की छुट्टी ले लो, try it out, हाँ sabbatical, try it out, because it is a huge switch. I said, sir, दिमाग तो बना लिया, but ठीक है, मम्मी पापा के लिए ये बड़ा अच्छा comfort होगा, that because nobody in my family is a business person, हम सब नौकरी करते हैं. So और ये NGO चलाया था, तो अपनी नौकरी से ही थोड़ा थोड़ा contribute कर रहे हैं उसी से. तो अपना टाइम सैटरडे संडे को टाइम दे रहे हैं और वैसे इस तरह से हम चला रहे हैं उसको. सो इट्स लाइक ठीक है, नॉट अ बैड आइडिया, बट समवेयर आई मेड अप माई माइंड दिस इज व्हाट आई वांट. एंड देन 6 months तो पता ही नहीं चला कैसे निकल गए. हमने यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी स्कूल में एग्जीबिशन लगाई, हमने कहीं कहीं लगाई. इट वॉज ऑलमोस्ट अबाउट टू शट, वी हैड टू क्लोज, लाइक पदारा पदारी डिसाइडेड वी हैड टू क्लोज दिस विंग बिकॉज वी आर टेकिंग डोनेशंस, और ये डोनेशन पे चल रहा है, तो डोनेशन पे नहीं चल सकता बिकॉज डोनेशन हाँ एजुकेशन के लिए बेटर है, बट ये दिस हैज टू बी सेल्फ सस्टेनेबल. सो आई सेड आई थिंक ये हो जाएगा, हम कर सकते हैं. वो 6 महीने में जो रेवेन्यू आया, 6 महीने में जो समझ में आया, एंड मेजर प्राइस करेक्शन वाज द मेजर कंसर्न थिंग. और उसके बाद से फिर सिस्टम्स लगाने, सबका प्राइसिंग करना, लॉट ऑफ दोज बिजनेस एस्पेक्ट्स, ये हो जाएगा. सो सबके अंदर एक अजीब सी बढ़िया वाली लहर आ गई कि हाँ ठीक है करते हैं. एवरीबडी स्टार्टेड. सो नाउ द शिफ्ट वाज फ्रॉम अ एनजीओ माइंडसेट टू अ बिजनेस माइंडसेट कि अपने पैसे खुद कमाने, अब कहीं से रेज नहीं होंगे, हाँ ग्रांट्स पे नहीं डिपेंडेंट रहना है. सो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू थिंक कि कंप्यूटर्स पे नहीं काम करते थे, थोड़ा पुराने स्टाइल से करते थे. तो फॉर देम इट वाज अ बिट ऑफ अ अनकंफर्टेबल मोड, बट एवरीबडी सपोर्टेड. मतलब 1.5 साल लगा एंड सब ने धीरे धीरे दे लर्न हाउ टू वर्क ऑन लैपटॉप्स. तो एक पेपर पे बना रहे होंगे अगर अपनी चीज शीट्स जो भी कॉस्टिंग होती है वो सब, तो फिर उसको लैपटॉप पे चढ़ाएंगे. तो ही लाइक आई सेड आई एम ओके विद लैपटॉप. लाइक नहीं मुझे तो ये चाहिए ना पेपर, मुझे आप दोबारा ऑर्डर लाओगी तो मुझे तो शीट में समझना है. ठीक है, तो दोनों काम करते हैं. तो इवन इफ इट मेंट डूइंग इट ट्वाइस इट वाज ओके, बट एटलीस्ट लर्निंग वाज डेफिनेटली देयर. And then new interns came from SPJN and a few other colleges. So they brought some new ideas, some fresh things. Google Sheet पे करो, इस तरह करो. This was 10 years back. Google Sheet is famous like पास 2-3 साल से चल रही है. So I remember my brother was in US and I said देख मैं तेरे को ये ना कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ, तू बताना. Like मेरे साथ for him also it was like तुम मेरे सामने कैसे कर रही है, ये शीट में जो तुम डाल रहे हो मुझे कैसे दिख रहा है. I said this is Google Sheet. So this is so ये नए लोग आते गए. Somewhere we have a lot of like iVillage is very tuned to technology और आगे कैसे बढ़ना है. This was innate nature for us, हम पकड़ लेते हैं. तो आज भी हमारा जो बहुत अच्छे से चलता है, our office is in Delhi and our production happens in the village. But we are able to manage everything very comfortably because of lot of technology that we use, automation. Our clients get updates on, जैसे Amazon पे आप ऑर्डर करोगे कुछ भी सामान, तो कि क्या order it's on its way, everything. हाँ, so क्या प्रोडक्शन में अभी क्या कटिंग हो गई, आपका सामान मटेरियल इन हो गया है, चेक हो गया है, कटिंग हो गई है, ये प्री सैंपल अप्रूव हो गया है, प्रोडक्शन सैंपल, एवरीथिंग द क्लाइंट गेट्स ऑन एज एन अपडेट ऑन देयर व्हाट्सएप. So that's how we are able to comfortably manage. तो वो सब किया and then I went back to, अब 6 महीने हो गए थे वापस अगर हम जाएं तो. So I went to sir, ऐसे ही बैठे थे हम. So he's like
अच्छा कितने क्या दिन करना तक करेगी कितने दिन तक करेगी? ओके like how much time do you need, because then he realized what I was doing in marketing be helping there also, हाँ so he needed me there. हाँ So I said सर ये तो अगर एक गांव को ठीक कर दिया तो तो और फिर 5 100 गांव गाँव हैं, है, हाँ 5 गांव को ठीक कर दिया तो पूरा इंडिया है सर, ये तो काफी टाइम लगेगा, लाइक 5 साल 10 साल कितना, 10 के बाद तो मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पे होऊंगा. So I said, sir, I have no idea, but it doesn't look like I'm coming back soon, if that's हाँ what your question is. So he said, okay, so go do. You have my blessings. But whenever you are ready and whenever you think you want to switch back, we are here. इसमें एक क्वेश्चन है आर्या, what was there an incident, a moment or something which actually made you decide it? Yeah, it was so the way you are explaining तो ऐसे गए और ऐसे कर गए लिया. और हो गया. No, no, there was so There was much ups and downs. नहीं What that I'm not talking particular I'm not moment. talking about the struggle, उस पे बाद में आएंगे. What was that particular thing that touched you? Was it an emotional decision, a rational decision, or family influence decision? What was it? Thank you for taking me down the memory lane. Definitely a emotional decision, क्योंकि कैलकुलेटिव तो बिल्कुल नहीं था. कैलकुलेटिव होता तो हम, मुझे ऐसा लगता है कि हम और ज़्यादा ग्रो कर चुके हाँ होते हैं आज की डेट में, हाँ क्योंकि 5-6 साल तो मैंने पैशन में ही निकाल दिए हैं. बट व्हाट हैपेंड वाज, हम गांव में ही थे. सो ड्यूरिंग द 6 months वी वर इन द विलेज एंड आई जस्ट happened to ask one of the ladies and I said, ये इसको करने से आपको कितनी तनख्वाह मिलती है, ये जो आप कर रहे हो आपको क्या मिलता है? She like, पैसे तो ठीक ही मिल जाते हैं, नहीं तो हम यहाँ थोड़ी ना आते. और अगर पैसे, and then I said, आपको ठीक लगता है यहाँ पे आना, मजा आता है. हाँ I had to get my things right, yeah no, yeah कि भाई ये मतलब सेटल भी है आने के लिए. ऐसा तो नहीं कि somebody is pushing her to come here. Is she happy doing this? Because she's my workforce going to be. This is where I'm deciding my career switch. So she said, अच्छा तो लगता ही है, पैसे तो होते ही हैं, पर अगर मतलब सब कुछ ठीक होता घर में तो शायद नहीं आते. लेकिन हाँ मजबूरी तो है ही, पैसा तो कमाना है, बहुत परेशान है. लाइक एंड देन शी some line she mentioned कि पैसे होते तो हम ये कर रहे होते, ये क्यों हम कर तो रहे होते हाँ हैं? ये क्यों कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट. एंड दैट वाज द डेफिनेटली अ डिसाइडिंग पॉइंट फॉर मी सर कि इतने पैसे नहीं है तो कि सिर्फ मजबूरी में हाँ कर रहे मजबूरी है. मतलब माई सो देन आई सो द स्टोरी अराउंड हर वाज, हस्बैंड हैड गॉन टू द सिटी टू अर्न, लाइक वही गार्ड है हाँ और वहां से कुछ पैसे भेज रहे हैं. कभी भेजता है कभी नहीं भेज पाता है. बीमार पड़ गया या कुछ हो गया, इधर यहाँ पे गाय बीमार हो गई, या सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑफ हियर ऑल्सो एंड देयर ऑल्सो. देयर द And they're not फैमिली द पार्ट, together हाँ. एंड also. देन इवेंचुअली या तो वो चली जाएगी या वो यहाँ आ जाएगा, बट दे आर इन अ बैड सिचुएशन एंड द फीमेल इज रियली स्ट्रगलिंग so much that she has now stepped out and said, I will take charge of, if there is an option, I would want to support my family in a better way. So then I said, yeah, then let's create an option. मतलब हर आदमी के ऊपर अकेले पे इतना प्रेशर ना हो, और हर औरत अकेली स्ट्रगल बैठ के ये ना सोच रही हो कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, टू मेक माउथ फीड, टू मेक श्योर कि मेरी गाय अगर बीमार है तो वी हैव द मनी टू गेट हर बेटर, वट एवर शी नीड्स टू अर्न दैट मनी फॉर. तो लेट हर बी अ कॉन्ट्रीब्यूटिंग मेंबर टू. एंड थोड़ी इंस्पिरेशन थी क्योंकि लड़कियों का स्कूल चल रहा था, तो ठीक है ये लोग बाहर जाके पढ़ी लिखी हैं, बाहर जाके कमाती हैं, या जहाँ से पढ़ाई लिखाई करके जैसे भी कमाती हैं, बट ये अनएजुकेटेड के लिए भी हम कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है. एंड दिस वाज अ ग्रेट वे आउट कि ठीक है सिलाई आती है घर में, हर किसी के पास एक घर में मशीन होती है मोस्टली जिनके साथ हम काम करते हैं. दे जस्ट हैव टू स्विच फ्रॉम अ सिलाई उषा की मशीन जो ऐसे चलती है टू अ इलेक्ट्रिक मशीन. तो 5 दिन, अब पहले तो हमें 1 महीना लगता था वो डर निकालने में, अब तो हम 5-6 दिन में वो जॉब फ्लोर पे होती है बंदी. सो 6 days इज व्हाट इट टेक्स फॉर हर टू मैनेज द मशीन. जैसे साइकिल चलाना सीखते हैं ना कि वो सीधे रूट पे चलो और रूल्स के साथ चलो, तो विद इन 6 days शी इज ऑन द शॉप फ्लोर एंड देन हर लाइफ करियर बिगिंस. And what have been your struggles? Now you seem to be settled. Like mentally, I would say. Oh yeah, struggles की तो लाइन है, but I love Top 3 my struggles. life. ये बड़ा मुश्किल है विपिन. Top 3 या बोलो स्ट्रगल ही है. स्ट्रगल ही है. नहीं, आज नहीं है, आज नहीं है. टुडे वी आर एट अ पॉइंट, तो चलो लेट मी टेक इट बैकवर्ड, लेट मी सेलिब्रेट जो स्ट्रगल नहीं है. सो टुडे देयर इज सेल्स टीम which sells, which get orders. Today we have जो भी बोलती जाऊंगी वो सब स्ट्रगल ही था. Maybe let's put it that way. Yeah. So we have a sales team which does sales, and a very dedicated one. We take advance from a client, or advance 50% advance and 50% on delivery. तो पेमेंट कर दो तो डिलीवरी हो जाएगी.
और अगर किसी वजह से आपका सम कॉर्पोरेट्स हैव इट कि भाई सामान नहीं पहुंचा तो कैसे करेंगे, तो अभी थोड़ा सा हम लीनियंट हैं, बट विद इन अ वीक यू हैव टू मेक द पेमेंट. सो वो स्ट्रगल खत्म हो गए. क्वालिटी इश्यूज बहुत था कि कैसे क्वालिटी आएगी. द वन थिंग, कितने पैसे एक लड़की घर लेकर जा रही है, दैट वाज समथिंग. हाउ मच इज शी अर्निंग, सो उसको कैसे बढ़ाए, बिकॉज नन ऑफ अस, at least I wasn't from me and my mom, we were not from a technical background of हमें नहीं पता निफ्ट कि नहीं है, हम की कैसे सिलाई होती है, कैसे बेटर होता है. सो उसकी ट्रेनिंग्स करनी, उसको कैपेसिटी बिल्डिंग करना, सिस्टम्स लगाने. सो वो दोज वर थिंग्स दैट वी लर्नड. एंड देन इससे भी पहले जो पहली चीज थी कि लड़कियां या औरतें या जो भी है वो आएंगी या कैसे. नहीं आएंगी. हाँ, उनको वो आएंगी क्योंकि उनकी convince फैमिली करना. को कन्विंस करना विद लॉट्स ऑफ लव एंड एश्योरेंस कि ये बहू आपकी ही रहेगी, ये कुछ नहीं होगा, और पैसे आएंगे भी तो अकाउंट में आएंगे, सब बहुत क्लीन होगा. इसका कोई nobody will make fun of this कि ये कहाँ जा रही है, कोई उल्टा सीधा काम नहीं कर रही है, कुछ अच्छा सीख रही है, सिलाई करके कर रही है. सो इट इज नॉट लाइक अ ब्यूटी पार्लर कोर्स दैट शी इज डूइंग एंड समथिंग. सिलाई कर रही है, कहाँ पे आएगी. एंड थैंकफुली बिकॉज ऑफ द परदादा परदादी स्कूल and our family have a reputation. हाँ, we have a reputation कि यहाँ पे सब safe है. So that was the biggest thing. But yeah, still I remember those were the biggest and the major struggle. भाई बैठा बैठा बोल देता था ये नहीं जाएगी, अपनी बहन के लिए बोलता था ये नहीं जाएगी. अब क्यों नहीं जाएगी? नो रास्ते, बस हम नहीं भेज रहे, हमें लड़की से पैसे नहीं कमाने. So the girl is struggling. She wants to save money for her education. She wants to save money for her better शादी और समथिंग. शी वॉन्ट्स सम मनी ऑफ हर ओन, बट भाई ने मना कर दिया, हस्बैंड ने मना कर दिया, फादर इन लॉ ने मना कर दिया. कोई मैरिड है तो उसके इन लॉज आर नॉट सपोर्टिंग वेयर दे वोंट टेक केयर ऑफ द किड, अगर बच्चा छोटा है तो. सो दोज वर मेजर थिंग्स. अब ये सब नहीं है. अब भाई लोग कमा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं तो इनफ एंड मोर लोगों ने कमा के देख लिया. हाँ. सो वहां से कोविड वॉज अ मेजर टेस्टमेंट ऑफ आवर एफर्ट्स. कोविड में सब आदमी लोगों की दुकानें बंद हो गई. वी स्विच टू फेस मास्क मच अहेड ऑफ टाइम. अच्छा, मच अहेड ऑफ टाइम, मतलब अगर फर्स्ट लॉकडाउन. हाँ, अरे उससे बहुत पहले, मतलब दिसंबर में. सो लॉकडाउन हैपेंड समवेयर इन मार्च. हम दिसंबर से हमने फेस मास्क बनाने शुरू करी. सो अगेन सी व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर पीपल तो समथिंग हैपेंस, यूनिवर्स टेक्स केयर ऑफ यू. सो दिसंबर इज व्हेन जब ये सर्जिकल मास्क थोड़ा कम मिल रहे थे शहरों में भी, 10 रुपए का मास्क 50 का हो गया था. एंड देन आई सेड यार दिस इज नॉट हैपनिंग. ये अ डॉक्टर रीच्ड आउट टू मी एंड ही सेड कि मेरे को कपड़े के वो हरे रंग के जो ओटी में मास्क बनते हैं वो बनवाने हैं, एंड आप बनाओगे क्या? एंड ही गेव मी द वे हाउ इट इज डन. सो मैंने जाके सैंपल्स बनवाए. एंड देन विद दिस उसी टाइम पे हम प्रैक्टिस कर रहे थे, एंड इसमें ये सिचुएशन आई कि कोविड क्या मतलब ये सिचुएशन हो रही है. सो आई वेंट देयर एंड आई सेड यू नो व्हाट, आप सब लोग ये मास्क आज कोई काम नहीं करेंगे, सब रोक दो, पुराना कपड़ा निकालते हैं, सब मास्क बनाओ और अपने लिए बनाओ और अपने लिए पहनो. दे फेल्ट सो अनकंफर्टेबल कि एक तो मास्क बनाओ ऊपर से खुद पहनो. वेल दे डिड दैट एंड दे वेंट होम. Then they said then I said today we'll make 4 masks, one for each in the house. So next day they made for everyone, and I just sent some pictures. I say group pe, this is how we are saving ourselves. And people said यार हमें यही दे दे. We started to get orders. जब तक लॉकडाउन आया, जब तक कुछ हो, तब तक तो हमने पूरा सिस्टम सेट कर दिया था कि मास्क यहाँ से वहां तक भेजने कैसे. और लॉकडाउन में मास्क ही बना बहुत मास्क एक साल आप मास्क ही बहुत बनाए. एंड आई एम हैप्पी टू शेयर 10 रुपए का मास्क हमने भी 50 का बेचा. एंड सो मेनी पीपल अर्नड, सो मेनी पीपल वी कुड ट्रेन. हमारी टीम डबल ट्रिपल हो गई. हमारा सेंटर वाज टेकन अवे एज क्वारंटीन सेंटर बिकॉज इट इज अ ह्यूज प्रीमाइस. सो गवर्नमेंट सेट क्वारंटीन. सो क्वारंटीन के टाइम पे हमने 4 मशीनें लगाई मंदिर में. ओके, दैट वाज रियली अ मेजर लाइक टेस्टमेंट ऑफ व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर पास्ट 5 years. कहीं ना कहीं इट हैज मेड अ डिफरेंस, क्योंकि आदमी लोगों के काम बंद हो गए थे. सो शॉप्स बंद हो गई, दे कुडंट गो टू वर्क, सो दे वर एट होम. नाउ इट वाज विमेन हु वर स्टिचिंग फेस मास्क, एंड हमारे पास ऑर्डर्स आने लगे थे अच्छी बड़ी कंपनीज के साथ. हम पहले भी कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कर रहे थे 5 साल से. So they started to give us orders that you're making face mask. We have 10,000, 2,000, 3,000 and all of that. So the husband would come, take the cutting. जिसको आता था, उसका पति आता था, वो कटिंग लेके जाता था
और घर में वो स्टिचिंग करती थी, वापस लाके कटिंग लेके आता था, इवन इफ इट meant coming for an hour or so, बिकॉज बहुत छुप छुप के आते थे, पुलिस खड़ी होती Allowed सब नहीं थी, जगह, हाँ। हाँ, सो बहुत ध्यान से आते थे, तो ही वुड कम गिव, और उसमें हम करेक्शन बताते थे, तो वो एज इट इज रिकॉर्ड करके लेके जाता था कि ये इसको ठीक करना है. So that was one change. Secondly, जिसको लगा कि मेरी बीवी को अभी क्वालिटी, एंड वी वुड से इसकी क्वालिटी ठीक थी, शी नीड्स ट्रेनिंग, तो वो बिठा के लाता था, 2 घंटे वेट करता था, और हम उसको ट्रेन करते थे, एंड ही वुड टेक हर बैक, एंड देन शी वुड मेक मास्क, एंड वी वुड गिव द मनी. उस वैसे तो उनका खर्च चल रहा है. आई हैव पिक्चर्स, बिकॉज आई सेड यार थोड़ी पिक्चर्स भेज दो, न्यूज़पेपर वाले मांग रहे हैं कि कहाँ बन रहे हैं ये मास्क. सो लड़की स्टिच कर रही है मास्क, और भाई नीचे झाड़ू लगा रहा है, जो भी खराब पीस है उसको ठीक कर रहा है, फिनिशिंग कर रहा है, और सफाई रख रहा है, क्योंकि मास्क तो साफ ही रहना है. So I have those kind of pictures that those same brothers started to support in such a way कि मैं काम करता हूँ, तू मुझे स्टिचिंग कर ले. स्टिचिंग कर लेते. हाँ, तो और हमने कितना, और कुछ लड़कियां करीब 8 लड़कियां जो बाहरी बहुत अच्छी लड़कियां थी, they said we have earned well, right now we have money to take care of our family. हम गाँव में जाके, बिकॉज थोड़ा थोड़ा जाना जहाँ पे अलाउड है, वहाँ पे हम उनको सिखाएंगे, क्योंकि ऑर्डर बहुत आ रहे हैं और हम अकेले इतना नहीं बना पाएंगे, तो हम उनको सिखा देते हैं कि कैसे बनना है. सो दे वुड ट्रेन, दे बिकेम द ट्रेनर्स, एंड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, कि इनको यहाँ इस हमारे गांव से ना आपको इतने मास्क मिल जाएंगे, मैंने इतनी लड़कियों को सिखा दिया है, यहाँ से आपको इतने मिल जाएंगे. तो हम वीडियोस बना के भेजते थे कि ऐसे करो, एंड दे वुड डू इट. सो दिस वाज द चेंज दैट केम. मतलब व्हाइल आई एम टॉकिंग मुझे गूज़बम्प्स हैं, बिकॉज दिस इज व्हाट गॉट अस टू यूएन. फ्रॉम दैट डे आई सेड वी हैव मेड अ ह्यूज थॉट प्रोसेस चेंज, माइंड शिफ्ट किया, ये ना यूएन में जाना चाहिए, कि ये ऐसे जब बिजनेस चलता है तो ये चेंज आता है. There's so much money gets spent by the philanthropist कि ये करना है, ऐसे करना है, but not everything gets implemented to that level. Yeah. So ground level पे कितना change हो lasting रहा है. impact नहीं आता. हाँ, so I said I want my story to go there. These women should reach there. Thankfully, जो मतलब again like I said, जो बोलो वो the universe takes care of it. कि we somehow reached UN Women, and not just that, twice we have got award in 2022 Wow. and 2024 for the impact that we are creating. And 22 में we were runners up. 24 में we again put our act together, थोड़ा और impact gather किया, क्योंकि उससे पहले impact लिखते कैसे हैं, क्या measure कैसे करते हैं, वो पता नहीं था. So we did that, and 2024 we were winners, and in the league of Wipro, Zomato's, and Capgemini and all of that. So Their CSR and your हाँ, their women empowerment wing or whatever effort they're making for gender equality, and ours as iVillage, which is about gender equality itself. So that was a shift, and I said हाँ ये चाहिए था. And this is least amount of social media. हमें नहीं आता आज भी. Marketing is not our major strength. It is just network, the referrals, the word of mouth that has spread. And we just keep getting work, orders and awards. Some अच्छी जगह पे हमें अपने आप ही recognition जहाँ चाहिए होता है वहाँ पहुँच जाते हैं हम, और मिल जाता है. Ended up being here, I don't know how. But so yeah, मतलब a lot of messages come ना, award, paid awards, etc. तो ये तो देखते भी नहीं हम. और marketing भी, I enjoy LinkedIn, so I do it, but हमारे पास कोई marketing department नहीं है, कोई team नहीं है. बंदा भी कई बार आता है और चलाता है, बिकॉज हम उसको इतना दे नहीं पाते. So like that has not been our focus area so far. It has been sales and production is the most important thing, कि भाई ऑर्डर लाएंगे तो सामान बनेगा. How many women you must have impacted, or how many families, I would say? So हमने मतलब 5,000 plus तो impacted much more. 5,000 families. Wow. 5,000 people plus. हाँ. Bulandshahr. हाँ, अब वो यहाँ से शिफ्ट होके कहीं चले गए. So this is the next milestone that we need to, and we are already in the process. And what is that? Yeah, happy to share. So हमने सोचा कि अब हम प्रोडक्शन सेंटर, हमारा बुलंदशहर अनूपशहर में है. We forgot to share with our audience that it is in अनूपशहर, बुलंदशहर. बुलंदशहर एक tier 2 city है यूपी में, और नोन फॉर वेरी नोटोरियस रीजंस. आई नो. और उसमें आगे बढ़ के तहसील है, ब्लॉक जिसको बोलते हैं अनूपशहर, जहाँ पे अराउंड 95 विलेजेस आते हैं उसके अंदर. तो 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने विलेज आते हैं, तो करीब 95 आते हैं समथिंग. तो उसमें से हम अब तक 1,000-1,200 औरतों को ट्रेन कर चुके हैं, और वो आगे कभी अपने घर में काम करती हैं, कभी आगे एक्सपोर्ट हाउसेज में चली जाती है, शादी होके और आगे बढ़ जाती है, वेयर एवर वॉट एवर वर्क्स फॉर देम. सो
उसके थ्रू करीब करीब 5,000 लोगों से तो ऊपर ही इम्पैक्ट हो चुका है, बिकॉज एवरी फैमिली इज एटलीस्ट Wow. मिनिमम 5 Yeah, और yeah, अपना घर और दूसरा घर. एंड सो मेनी टाइम्स देयर 2-3 वेरी नाइस स्टोरीज कि जो यंग लड़की है वो सेव करती है, अपनी शादी का खर्चा उठा लेती है बड़े आराम से, शादी का खर्चा. शादी का खर्चा Wow. बड़े आराम से, पढ़ाई कर लेती है, अगर उसको पढ़ाई करनी होती है तो आती तो पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई भी कर लेती है और शादी का खर्चा भी उठा लेती है. और अपने घर में कोई मुसीबत आए तो कभी भाई की शादी में Saving पैसे होती दिए है. हैं, हाँ पैसे दिए हैं, मम्मी की तबीयत खराब हो गई उसमें पैसे दे दिए हैं, घर बनाना था कमरा एक और बनाना था, भैया की शादी है तो एक कमरा बनाना है उनके लिए, उसमें पैसे दिए. सो मच. तो दिस इज लग्जरी, और आप लाइफस्टाइल काम सिर्फ आप विमेन को देते हो, मेन को नहीं. जरूरत नहीं पड़ती अच्छा. मैन के साथ, पर somehow women needs more attention, तो मेरा ध्यान तो हम लोग का वहीं जाता है. हाँ. पर वी हैव लाइक अबाउट, देखो जो आदमी खुशी से औरत को आगे ले जाने के लिए तैयार है, हम उसके साथ काम कर साथ लेते हैं. हाँ. तो ऐसे हमारे कुछ करीब 10-15 आदमी लोग हैं हमारे साथ. तो इस माइंडसेट से जो कोई आ जाता है वो आता है. जब वो कहता है ये काम लड़कियां नहीं कर सकती, ये हो नहीं सकता, वो हाँ धीरे धीरे अपने आप ही बाहर चले चला जाता है. जाता है. हाँ, बिकॉज इफ ही इज नॉट डजंट बिलीव इन द स्ट्रेंथ, देन दिस इज Yeah. नॉट सो मच दैट वी कैन डू. Hmm. इफ वी से यार ये प्रोडक्शन है, ये 5,000 पीस है, ये निकलवाने हैं इनसे, और देख कैसे प्लान कर, तो जिसको होता है कि हाँ ये कर देंगी वो रहता है, वो ही स्टेज एंड दे वर्क एंड वी ग्रो टुगेदर. सो जो जिनकी शादी हो चुकी होती है औरतें, वो क्या, उनके साथ क्या है, बिकॉज रिसेंटली वी डिड टीम अलाइनमेंट मीटिंग एंड हाउ टू गो नेक्स्ट 10 years. दे सेड मेरा पति पहले ठेले बेचते, सब ये फ्रूट्स बेचता था, पर उसके बाद मतलब इतने सारे लोग आ गए, इतना कंपटीशन हो गया, उसके नहीं बिकते थे एंड वी वर स्ट्रगलिंग. तो इट गॉट हिम टू अल्कोहल, गॉट इट अस इनटू डेट्स एक्सेट्रा. बट अब मैं कहती हूँ तुझे बेचना है तो बेच ले, दिन भर खड़ा रहे, नहीं भी कुछ बिकेगा तो कोई दिक्कत नहीं है. सो ही इज डूइंग इट विद सच अ फ्री माइंड. सो मैकेनिक एंड लाइक शी इज सपोर्टिंग. और एक ने ड्राइवर था वो किसी और के ट्रक पे, धीरे धीरे कमर्शियल व्हीकल ही खरीद ली. एंड शी सेड वील पे द लोन, तू भी थोड़ा कमाएगा, थोड़ा मैं देती हूँ, आई हैव सेविंग्स. एंड एक व्हीकल खरीद के हो गई. अब नाउ शी वांट्स टू बाय अनदर व्हीकल. सो शी वर्क्स नाइट, कि मैं नाइट लगाती हूँ क्योंकि हम दूसरी Wow. व्हीकल भी आ जाएगी. Wow. सो ऑन एंड सो फोर्थ. मतलब पढ़ाई का तो एक बच्चे की पढ़ाई हम दे रहे हैं, एक बच्चे की तुम दे रहे हो करके, वो सब तो होता ही है. बट दीज आर सम अमेजिंग स्टोरीज. अल्कोहल गॉन, लड़ाइयाँ खत्म हस्बैंड वाइफ की, मेजर जो इश्यूज पैसे से हो सकते थे वो सब सारे रिजॉल्व चले हो गए. हाँ, सो दैट क्राइम रेट भी कम हो गया होगा उस हाँ? जगह का. हो गया होगा जरूर. हाँ, ये सब हमें सुनाई नहीं आता तो कम ही हो गया होगा. नाउ द नेक्स्ट माइलस्टोन इज कि अच्छा यहाँ पे तो हो रहा है, बट आई नो दैट ऑल ओवर द कंट्री वी नीड दिस. सो अब कैसे करें. सो दिस वाज, एंड हमारे ऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं. हमें ना, जैसे क्या होता है, बाहर के लोग अगर कब जहाँ पे एक्सपोर्ट हब्स हैं, बैंगलोर हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव, अब मानेसर पहले हुआ करता था उद्योग विहार, नाउ इट्स मोर मानेसर. बट अगर आपने एक मैसेज लगा दिया कि हमें यहाँ पे ऑपरेटर चाहिए, तो लाइन लग जाती है. बट इन द विलेज दैट्स नॉट हाउ इट हैपेंस. हम पैम्फलेट्स बांटते हैं कि हमें चाहिए, लोग आते हैं, इट टेक्स अबाउट 6 to 10 days टू ट्रेन देम एंड देन दे ज्वाइन. तो हमने कहा ठीक है, यहाँ टाइम लगता है लोगों को इकट्ठा करने में, बट आई वुड नीड प्रोडक्शन सेंटर अक्रॉस द कंट्री. एक मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होना चाहिए. अब इसको कैसे करें. सो वन वे वाज, yes, you raise funds or you do the same way of taking a loan or whichever, like इकट्ठे करो पैसे और एक प्रोडक्शन सेंटर लगाओ. But then that's where we are also very big on sustainability. Okay. So हम जो products बनाते हैं, our products have the strength कि वो प्लास्टिक को, one time प्लास्टिक यूज, ये कपड़े का अच्छा यूज होता है. हाँ, ऑल्टरनेटिव्स के लिए है, यूटिलिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स, बट रीयूज एंड फॉर जेंजी. सो अब अगर हम इसमें सस्टेनेबिलिटी कैसे ला सकते हैं, हमने बोला कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं, बहुत सारी कंपनीज की CSR यूनिट्स होती हैं जहां वो टिक इन द बॉक्स करते हैं अपने एरिया के पास ट्रेनिंग देके औरतों को, और उसके बाद ये नहीं पता कि उनको नौकरी लगी नहीं लगी, यू मैनेज योर सेल्फ. मतलब वो कोई ब्लाउज सिल रही हैं और सूट सिल रही हैं गाँव में, ठीक है, नहीं सिल रही तो नहीं सिल रही, योर प्रॉब्लम. माई थिंग वॉज टू ट्रेन यू एंड दैट्स इट. और मैंने एक मशीन आपको दे दी. So we started to reach out to them and we said, आपकी जो existing CSR यूनिट है, हम उनको काम देंगे, हमारे पास काम है. अब उससे आई विलेज को क्या है, आई विलेज को स्ट्रक्चर नहीं बनाना, आई विलेज को कोई मशीन नहीं लगानी, उन सब पे कोई खर्चा नहीं करना, बिकॉज दैट्स ऑलरेडी देयर विद देम एंड दे हैव स्पेंट डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी.
सो कुछ भी नया नहीं क्रिएट करना और एग्जिस्टिंग को इमीडिएटली वी कैन गिव, और आपका जो भी कोई एक प्रोडक्शन सेंटर में जो भी हेड होगा जो इस बात को ध्यान रखता है, आप उसको ट्रेन कर देंगे कि ऑर्डर्स कैसे मैनेज करने हैं, तो ही बिकम्स अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सारी तरीके हमें आते हैं, वील डू दिस। एंड देन दे वर लाइक, अब ये भी हमें पता था कि लेवल भी नहीं है उतना, क्योंकि वो स्किल उतनी अच्छी नहीं होगी। तो जैसे अगर आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो तो गवर्नमेंट स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल वाली बात है। So we said, then we would also do an analysis to see if you're market ready. If not, then we will spend about a month to train you. तो वो एक होगा, और उसके बाद once you're up to that level, that we will give you, हम फिर काम देना शुरू कर देंगे। Apollo Tyres we collaborated with Apollo Tyre Foundation. Wow. And हमने उनका केरला यूनिट, उनके 3-4 यूनिट्स हैं। One is Kerala unit because we have orders from Isha Yoga Center, Coimbatore. It is logistically हाँ south, and it's logistically easy कि client क्यों पैसे ट्रांसपोर्ट पे खर्च करे, हाँ अब वहीं से वहीं कर लेते हैं। So we are working with them, we are training them so that उनके से उनका ऑर्डर लगातार जाए। And we reached out to Isha Yoga also saying आपके यहाँ पे जो they have a problem कि हमें आसपास से हमें लेना है लेकिन हमारे को क्वालिटी नहीं मिलती, जो आप क्वालिटी देते हो वो नहीं मिलती। तो मैं कहा आपके जो आसपास के लोग हैं ना, आप उनको आप मैप कर लो कितने हैं, वी वुड, हाँ, सो वी विल गो ट्रेन देम एंड वी विल अपस्किल देम एंड दे विल स्टार्ट गिविंग इट टू यू। आई विल रिस्पॉन्स, जब तक आप श्योर नहीं होगे तब तक आई विल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा कि ये क्वालिटी आपकी सही जा रही है, उसके बाद से आप दोनों साथ में। सो that's how we are growing and building and it's working phenomenally. Like client भी, हाँ ये आप कर दोगे आपका ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, कर देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। So this is how we thought. So now you were in the north, now you're in the south. South, yes, we started in south. East or west? East or west. अपोलो के साथ बड़ौदा भी जाना है। अच्छा, then हाँ, that's west. हाँ, it will take care of that because अब ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है उनके साथ कि कैसे हम इसको बड़ा करके करते हैं, because everybody wants कि काम मिल जाए। तो इसीलिए सेल्स टीम हमारी बड़ी अच्छी है, सेल्स से ऑर्डर ले आती है। इस टाइम ये सिचुएशन है कि ऑर्डर ज्यादा है, काम करने वाले कम है, तो इसको ग्रो करना है और सस्टेनेबिलिटी, या दैट्स अ गुड प्रॉब्लम, बट वी आर स्कैर्ड हाउ टू कमिट टू आवर क्लाइंट्स एंड से करेंगे इसको, लेंगे इसको नहीं लेंगे। एक चीज बताओ आर्या, I heard that you're doing all this without government grant. हाँ, वो कुछ नहीं, आज तक भी कुछ नहीं। Why? गुड क्वेश्चन। जो स्पीड मुझे चाहिए, हाँ, वो स्पीड मुझे लगता है गवर्नमेंट से मुझे मिली नहीं अभी। इट्स नॉट दैट आई एम एंटी और एनीथिंग, माय डैड इज अ गवर्नमेंट बीजेपी पॉलिटिशियन, ओके, सो इट्स नॉट दैट आई हैव एनी इश्यूज, बट जब मैं सोच लेती हूँ ना, एक तो ये भी कुछ है, जब मैं सोच लेती हूँ जल्दी भी होना है और सही माइंडसेट के लोग आ ही जाते हैं। इफ गवर्नमेंट इज, अगर मिलते भी हैं, मतलब रिसेंटली आई मेट दिस MSME डायरेक्टर who took me to Indonesia, who is taking me to Malaysia. Malaysia में we are discussing these kind of projects with Malaysian High Command. अच्छा, हाँ, तो मिल जाते हैं। आई एम नॉट एंटी एनीबडी, बट जो मिल जाए, जो कहे कि ठीक है, लाइक वी रीच्ड आउट टू 3-4 CSR यूनिट्स, अपोलो सेड हाँ ठीक है, तो अपोलो इट इज, और उसके साथ आगे बढ़े। अब ऐसे फिर और सैमसंग सबके साथ ही बात कर रहे हैं कि भाई हम वी कैन पिच टू यू एंड आपके, तो आपको इसमें उनको मैं बिजनेस एंगल दिखाती हूँ कि ये है तो आपका CSR का पैसा, बट इसमें बिजनेस एंगल क्या है कि आपका जो द मेल इज वर्किंग विद यू, सपोज टेक सैमसंग, ठीक है, द मेल इज वर्किंग विद यू, आई मेक श्योर दैट द फीमेल इज आल्सो वर्किंग, नाउ दैट द यूनिट इज वर्किंग, तो छोड़ के नहीं जाएगा, तो एट्रिशन नहीं होगा, उसका लाइफ स्टैंडर्ड अपने आप बढ़ जाएगा। देन ही इज नॉट लुकिंग एट मेरे को तनख्वाह कब मिली, कितनी मिली, whatever you are paying, वो ऑब्लिगेटेड भी रहेगा, हाँ, ऑब्लिगेटेड भी रहेगा, और फीमेल इज आल्सो, सो नाउ जब दोनों का माइंडसेट अच्छा प्रोग्रेसिव है, देन उल्टी सीधी चीजें नहीं होंगी, यूनियन सब काफी खत्म हो जाती है। सो दिस इज हाउ आई एम पुटिंग इट, ये आपको पैसा खर्च करना ही है, हमें लगाना ही है कुछ, हमें किसी ना किसी को ट्रेन करना ही है, वी माइट एज वेल डू इट अराउंड यू, सो एंड टेक केयर ऑफ थिंग्स देयर। नाउ आर्या, एक चीज बताओ, यू मस्ट बी मीटिंग अदर पीपल हु रन NGOs, who like work for a cause. I've seen many NGOs struggle. बहुत सारी स्ट्रगलिंग स्टोरीज हैं, हमेशा पैसे कम होते हैं, लाइक आई नो अ फ्यू, उनके हर थोड़े दिन में मैसेज आ रहा होता है, ये रिक्वायरमेंट है, डॉग शेल्टर हम रन करते हैं, आपने पहले डोनेट किया था, अभी कीजिए, हम ये रन करते हैं फॉर ओल्ड वुमेन, हमारे पैसे खत्म हो गए हैं, ये दवाइयाँ दीजिए, ऑल ऑफ दैट। व्हाई डू यू थिंक दे स्ट्रगल? Why aren't they able to make a model the way, because you're on the other side, right? You made it successful. So what do you think are the issues that they struggle?
सो बहुत ही अच्छा सवाल है. आई एम ग्लैड कि अब हम वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि I'm happy that this is exactly what iVillage is moving towards. That we created a proposal, a program for this, purpose with profits, shifting mindsets of NGO towards profitability and less towards donation. And exactly उसमें वही है, it's like a 9 months to an year course कि आप कैसे अपने आप को पेमेंट रिलेटेड बना सकते हो, रेवेन्यू ओरिएंटेड बना सकते हो rather than donation based. विद इन अ ईयर माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए हमने पूरा प्रोग्राम, दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग विद मलेशिया आल्सो, एंड दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग विद 1 or 2 अदर कंपनी. जैसे अभी एक ऑटिस्टिक रिलेटेड एनजीओ है इन नोएडा. ओके. सो सिमिलर कि अगर मैं भेजता हूँ अपने बच्चे को मोटर स्किल्स और इन सब के लिए, बट दे वांट दैट इसमें से हम रेवेन्यू जनरेट करें, एंड उनके पास बच्चे ऐसे हैं कि पापा आप दे देंगे पैसे, बट वाई, लाइक दैट शुड बी ऑन द साइड कि आप नई बिल्डिंग बना लो उस पैसे से. चलो, बट अभी आपके जो रेगुलर खर्चे हैं वो आप अपने आप निकाल सको. एंड अभी पहली मीटिंग ही हुई एंड आई गेव देम सम टिप्स एंड थॉट्स एंड दे वर लाइक हाँ दिस कैन वर्क, लेट मी वर्क ऑन दिस. ये अगर ये माइंडसेट शिफ्ट हो जाए कि मुझे डोनेशन से हट के अपने पैसे कमाने हैं, चाहे फिर मैं ओल्ड एज होम हूँ, चाहे मैं डॉग शेल्टर्स हूँ, वो तरीका निकल जाएगा. बट इफ यू आर रेडी टू बी सेल्फ सस्टेनेबल यू कैन ग्रो बेटर. तो यू मीन इट इज अ माइंडसेट गेम? इट्स अ माइंडसेट बिकॉज जो भी एनजीओ चलाता है उसके दिमाग में यही होता है कि मैं पैशनेट हूँ तो दुनिया भी होनी चाहिए, दुनिया और भी होनी चाहिए, और चाहिए. वो बस पैसे दे और उस ग्रांट से मैं किसी तरह से चला लूं, एंड तभी वो स्ट्रगल करता रहता है. हाँ, सो उसके दिमाग में ये होता है वर्सेस रनिंग इट एज अ बिजनेस कि आई एम डूइंग दिस, उसका इम्पैक्ट तो लोगों के लिए हो रहा है, बट मेरे को इसमें इसलिए पैसे बनाने हैं कि ये सस्टेनेबल हो, ग्रो करे. वो नहीं है उनका. हाँ, अगर हम डॉग शेल्टर का किसी को यूटिलिटी अपनी जेब से निकालते जाते हैं. मतलब आई हैव सीन देम लिविंग इन सच बैड कंडीशंस और खुद ही पैसे निकालेंगे, एंड इट्स लाइक हॉरिबल. मतलब अगर मैं अच्छा भी काम कर रहे हैं, अच्छा भी काम कर रहे हैं, पर हाँ, मैं अगर आप काफी हद तक सही हो, इफ आई मेक अ स्मॉल शिफ्ट हियर, माइंडसेट शिफ्ट, दैट you really don't have to struggle to that level. आपको पैसे अगर लेने हैं और डॉग शेल्टर चलाना है, if you can identify कि मैं इसको प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बनाऊंगा. प्रॉफिटेबिलिटी की सीधी बात है भाई, अ डॉग ऑन द स्ट्रीट कैन डू सो मच हार्म टू सो पीपल. ठीक है, आई विल टेक केयर ऑफ देम एंड आई विल टेक अ fee from you. Suppose this is only one hypothetical example. I'll take a fee for this कि ये आपके डॉग्स का ये ध्यान हम रख रहे हैं, ये वाला, ताकि आपके जो पेट्स है वो सेफ रहें या आपके बच्चे सेफ रहें, and all of that. हाँ, and they also get and they proper earn. food. हाँ, और इनका भी ये भी सही से रखा जाए, ये भी स्टेरलाइज हो पाए, वो सब. सो उसका एक अगर हम बैठ के प्लान बनाए ना, एक दिन लगता है कि एक दिन, या मे बी आई थिंक अगर हम थोड़ा सा और मे बी सम वुड टेक लिटिल बिट मोर टू अंडरस्टैंड कि what is it that I can take, how am I helping the society, उसके बेसिस पे how can I make something out of it. जैसे उसको head come tails, head over tails वाला जो है ना, हाँ, head over tails. Since that person understands so much about dogs, वो products बनाना शुरू कर दे, वो products बेचेगा. Exactly. और उससे डॉग्स का को देखेगा. तो अगर हम, ये माइंडसेट है कि यार तू ये मत सोच कि because you are so passionate, the other person will also give money for the same passion. And you give them more business or more logical reasoning on why this would happen and how this will help. It will work. With autistics also, we worked on those lines. उनका तो दोनों साइड से चीज़ थी कि प्रोडक्ट बेस, हम प्रोडक्ट भी उनको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कौन से वाले आइडल, बिकॉज दैट शुड हेल्प दोज मोटर स्किल्स ऑल्सो. So we worked, there is a mechanism to it. उसके साथ सोच के ये हमने अपने लिए कैसे काम किया इस पे कि पहले हम कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते थे, उससे हम खर्चा मुश्किल से निकाल पाते थे और औरतें कम कमाती थी. मतलब बेचारेपन से बाहर आना पड़ेगा लोगों को. हाँ. And they will need to take responsibility as a business and show that this is the value that I'm adding. Yeah. तो पैशन तुम्हारे लिए है, लेकिन ऐड क्या कर रहे हो वैल्यू, ये इम्पोर्टेंट है. एक बड़ा स्मार्ट माउंटेनियर है, he came on my podcast. He sent me a message the other day. He said, I'm climbing the Everest thanks to this thing in March. If you want, I can take your company's flag and hoist it on this thing. तो I told him, I said, तू छोड़ वो मत कर, तू इंडिया का ही झंडा लगा दे. लगा दे. सर नहीं, आपकी कंपनी का भी छोड़ के आ सकता हूँ.
So, but look at his brain. You know, Yeah. he's saying this, and then he's thinking कि कहीं कुछ sponsorship मिलेगी, which is not wrong. which is true actually, and lot of people are doing that. So mountaineers are doing लोग that. इसको mix कर देते हैं हाँ. कि social cause means you can't make money. हाँ. So many people, so many celebrities are tagged कि ये तो पैसे लेते हैं. हाँ. But अगर वो पैसे लेके एक दूसरी फाउंडेशन चला रहे हैं, then so be it. They are using it for that purpose. Then so be it. And if their face coming on, like Akshay Kumar coming on for sanitary pads or whatever and हाँ. saying smoking is not great, Yeah. अगर उसके face से 1 लाख लोग समझ सकते हैं, हाँ. Then why not? वही. That's true. तो- और मतलब यही बेसिकली हमें भी यही शुरू के स्ट्रगल सबके होते हैं, हमारे भी थे. इवन आई रिमेम्बर कि गाड़ी लग गई है कहीं पे, थैंकफुली गाड़ी थी क्योंकि EY के पैसों से आ रखी थी, बट लग गई है, पैसे ठीक नहीं, कराने के पैसे नहीं है. बट एट वन पॉइंट आई सेड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई एम द पैशनेट पर्सन वर्किंग विद रूरल वुमेन, हु इज आस्किंग मी टू वर्क विद देम? nobody. कोई भी नहीं. तो फिर ये अगर मुझे मतलब इनको सस्टेन करना है और अपने आप को सस्टेन, ये दोनों की मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. responsibility. सो आई हैव टू क्रिएट अ बिजनेस आउट ऑफ इट. सो हमने बहुत पिवट किया. हमने पहले इसीलिए नाउ आई हैव मतलब I'll tell you, I have been able to create this profit with purpose because we have pivoted ourselves a lot to Yeah. understand what is working, what is not working. So हम पहले कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते थे कि चाइना से जो ये सारा आप इतना कप हाँ. वप लाते हो और ये इतना लेड लेकर आते हो, वी विल क्रिएट अ सस्टेनेबल ऑप्शंस फॉर दैट. सो वो हमने किया, अच्छा था, बट देन my people were not earning as much as हाँ. iVillage. We were selling well, we were doing well, we were good with creating story, but अभी पर्पस था कि ये गांव की औरतें कमाएं. और उसका बिजनेस वाइज एक लॉजिस्टिकली एक सीन होता है कि अगर हम बार बार प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, तो जो बंदा अगर हाथ मशीन कर रही है तो अलग बात है, पर बंदा अगर हाथ से कर रहा है तो वो बार बार चेंज हो जाता है. दिस आई लर्न दिस द सेम प्रॉब्लम विद आर्टिसंस इन इंडिया, Yeah. दैट वी क्रिएट न्यू प्रोडक्ट एवरी टाइम. तो जब हम Amazon पे डालते हैं तो जब तक वो उठा नहीं, हमने दूसरा क्रिएट कर Change दिया, हो गया. तीसरा. हाँ, तो वो उतनी हाई लेवल की ब्यूटी और फिनेस नहीं आती है. अच्छा. सो ये सब चीजें मैंने सीखी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम टू एक्सप्लेन, बट दिस इज द जिस्ट ऑफ इट. सो फिर हमने कहा ठीक है, एक देन वन डे वी ऑल सैट एंड वी सेड व्हाट इज इट दैट वी वांट टू डू. हमें गांव की औरतों को पैसा कमाना है या हमें iVillage का नाम बहुत बड़ा करना है. एंड देन दैट्स द, आई एम ग्रेटफुल अगेन, द टीम सपोर्टेड एंड टीम सेड कि this is how, it's not just my passion. So this was everybody coming together and we said ठीक है, हम let's decide which all are top selling 15 products. तो हमने 15 प्रोडक्ट्स निकाल लिए और हमारे उसमें से सबसे ज्यादा इजी कौन सा होता है बनाना, क्योंकि बिकता तो सभी है बाजार में, इजी क्या है. देन वी केम अप विद, उसको हमने स्केल किया. सो बैगेज कितना भी होगा वो ऐसे और ऐसे और ऐसे सिलाई है, एक रेक्टेंगल है. मेजर तो ये है, तो सिखाना भी आसान, बनाना भी आसान, टर्न अराउंड भी आसान, मार्जिन्स में भी लेस, प्राइसिंग वुड बी. तो प्रोडक्ट्स कम कर दिए. हमने प्रोडक्ट्स कम कर दिए. वेरी गुड. हमने एक्चुअली 3000 SKUs से हम ले आए उसको 15 पे, मतलब जान निकली 3000 से 15 जान निकली. सस्टेनेबल गिफ्टिंग कैटलॉग, मतलब वो ना बैग्स की वजह से वो कैटलॉग छूटती नहीं. आई स्टिल से सस्टेनेबल गिफ्टिंग कैटलॉग, और मना करने में एक लोगों को कि ये अब नहीं बनाते, बस अब यही चीजें इन्हीं में से ही ले लो ये, बिकॉज दोज आर मार्जिन, हाई मार्जिन प्रॉफिट आ गया. पर फिर वहां से प्रॉफिट आने लगा. धीरे धीरे बैग्स के ऑर्डर आने लगे. पहले जो 100 आते थे, 200 आते थे, 500 आते थे, अब 1 लाख पीस पे पहुंच गए. उससे भी ज्यादा पहुंच जाते हैं हमारे ऑर्डर्स, और पीपल अर्न. सो नाउ वी आर एबल टू पुट बिजनेस टू इट कि इतने ये औरतें इतना कमाएंगी तो हम सब कमाएंगे. सो हम सबका उसी से लिंक्ड है. सो दिस इज हाउ द बिजनेस वाज. एंड देन उसमें हम एक ही प्रोडक्ट, कोविड अगेन हेल्प्ड अस इन आइडेंटिफाइंग कि एक प्रोडक्ट बनाओगे, एक बेचोगे तो सही से पैसे कमाएंगे. जैसे मास्क से हमने चेंज शिफ्ट आया हमारे. सो दिस इज हाउ इट वर्क. एंड देन दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स केम इन द वे कि जो बाकी एनजीओज आज भी गलती करते हैं कि अच्छा अरे तो सुनने, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आप मेरे पास आते हो और आप पूछते हो व्हाट डू आई डू. आई कॉल माई सेल्फ अ सोशल एंटरप्रेन्योर. देन यू लाइक ओके व्हाट डू यू डू. I said we make cloth bags, sustainable gift products. So it helps eliminate plastic. And I work with rural women. तो ये वहाँ पे बनाती है. Oh, it's an NGO. Now I may say it is an NGO, or I may say no, it's a business. So अगर मैं पैशन की तरफ से आ रही होंगी तो मेरे को अच्छा लगेगा सुनने में, हाँ it's an NGO kind of a thing, but not an NGO. We make profits, etc. But मेरा वो फीलिंग आप उसको सेटिस्फाई करते हो कि हाँ मैं कुछ बहुत अच्छा काम कर रही हूँ. अरे आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप तो हाँ, और फिर वो सस्टेन नहीं तो करता, वो स्केल नहीं हाँ, करता. तो while I'm talking to you मेरे को खुशी मिल रही है कि मेरा वो जो पैशन एंगल है वो सेटिस्फाई हो रहा है.
बट इफ आई से वो मैं अपने लिए करती हूँ, लाइक दैट इज वेयर यू हैव टू पोज योर सेल्फ राइट. वो पैशन मेरा है, बट मैं आपको बिजनेस दे रही हूँ, आपको इतने रुपए का बैग मिलेगा, आपको एडवांस देना है, आपको डिलीवरी के टाइम पे इतने पैसे देने हैं, बताओ. एंड देन दैट्स हाउ वी चेंज आवर थॉट प्रोसेस, चेंज आवर माइंडसेट everywhere. Oh, this is so important. Like this, I would say, people who are watching, especially who run NGOs, they have to shift their mindset. वो जो बेचारापन है ना, छोड़ना पड़ेगा कि हम गरीबों की मदद करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं. मेरे दोस्त, अगर आप भी गरीब रह गए तो वो गरीबों को जो आप मदद कर रहे हो वो कैसे ऊपर आएंगे? तो आपको पहले पैसे कमाने पड़ेंगे. And these are instances I learned from my life. From my mother makes these envelopes. Sagan envelopes, and she did it. She's been doing it for 15 years. She had the same mindset. 10 रुपए का भेज दूंगी, 20 रुपए का भेज दूंगी कुछ. One day, when I was listening to your story, it was pretty similar. And she used to take care of 30 students in a school. Okay. And I said, नहीं, ये महंगा बेचो, ये इतने का बेचो. वो डरना शुरू हो गई, इसके आगे मैं कोई प्रोडक्ट नहीं लाऊंगी, ये हर चीज का रेट पता नहीं कुछ भी बोल देता है, कौन खरीदेगा. But then she learned, people started buying. Now she's handling 6 schools. I said, now see how much impact you're making. कोई 20 रुपए क्यों सगन दे रहा है, कोई 21,000 रुपए का या 11,000 रुपए का, वो 100 रुपए का एनवलप नहीं खरीद लेगा. और जब उसको पता चलेगा सोशल कॉज में देगा नहीं. Now that's the mindset shift. If even already 100 NGOs make in this country, it will make a big difference. It will make a difference, and that's what I'm saying कि अगर किसी को so when I go to NGOs and say this, तो वो थोड़े कांप जाते हैं. हाँ, ऐसे बट ऐसे कैसे, या आप हमें मतलब now you are making us feel ड्रेसअप भी ऐसे होंगे, वो ड्रेसअप भी वो माइंडसेट ही है पूरा वो गरीब ही लग रहे होंगे. They don't want to look well. So वो माइंडसेट है, लाइक अगर उसके पास अच्छी गाड़ी हुई तो उसको अजीब लगेगा कि ऐसे कैसे. एंड then what happens then again, see अंदर ना ये universe plays its own part. If you are ready to accept that I want that change, then what happens is that some CSR, shouldn't name till the time we sign the contract, that person comes up to me, says तुझे मैं पैसे देती हूँ ट्रेनिंग के, you train this NGO and bring that mindset shift. We will pay for this training. What you're talking about, market linkage, how to identify markets for you, how to identify the products, how to identify profits, we will train that. And that is what I'm telling people now. Like save that money and give it to us. If you really want to help an NGO, we will help them identify. इस पॉडकास्ट के बाद मेरे पास ऐसी बड़ी सारी रिक्वेस्ट आने वाली है कि आप मिलवा दीजिए हमें, हमारा भी माइंडसेट चेंज करवा दो. कर ही लो, मतलब तभी तो ग्रो करोगे, वरना हाउ एल्स. So women also in our village, in our production center, now there is no space to crib and cry. मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा. भाई सब हो रहा है, तो just show up, just come and show up, and we will everything will be taken care of. Like आपको पीस कैसे बनाना है, क्या होगा, वो सब कुछ हो जाएगा. तो आपका घर will be taken care of. Same the podcast के through होगा शायद, maybe again I don't know how this happened, but just say that I want to be profitable from today onwards. पैसा भी आ जाएगा, people will be happy to pay for training. So हम लोग जब कभी CSR, so हमारा CSR कैसे शुरू हुआ? We also have a CSR arm. It's called iVillage I Learn. We were giving it to, I'm so grateful to that organization and that couple, Nitin Sareen, Rohit Sareen and Meeta Sareen, client associate, Gurgaon में है. They're wealth management firm. I know. So they used to take products from us, Diwali gifting. They were our best clients for Diwali, and we are very good with curating stories related products. So जब 3 बार उन्होंने हमसे लिया, the last one was the best. It's called Box of Joy. मिठाई का डिब्बा हमने शिफ्ट करके Box of Joy बना लिया था उसका, how to be healthy with that thing. So उसके बाद COVID हुआ and they had to come and visit our facility because their daughter had to do some project. I was there and I said, I'll show you around, and I showed him around. Again, the visionary in this couple, they said, from this day onwards, we are not buying gifts. We will send a letter to our clients saying, आपके पैसे से जिससे हम गिफ्ट देते थे उससे हमने पैसे दे दिए ट्रेनिंग के, मतलब उससे हमने पैसे दे दिए इनको to do something. And Rohit said, come up with a plan, how will you use this money? So I said, okay. मैंने कहा खाना दे देंगे औरतों को, ट्रांसपोर्ट दे देंगे, ये.
एंड देन इट जस्ट केम, आई सेड ट्रेनिंग देंगे ताकि ये हाँ। ज्यादा कमा सके, ये जो अब जो भी कमा रही है, अगर 100 रुपए कमा रही है तो 120 कमाए, 130 कमाए. एंड Rohit had this because same time Rohit and Nitin Mohan, these two visionaries are like my go-to people कि कैसे करना है. So Rohit said मुझे ना इतनी तनख्वाह चाहिए लड़कियों की, how do you हाँ. make that happen? See, so there was a number. So आज भी वो मेरे को ये बोलते हैं ये नंबर अचीव करना है, like every now we Next have time. surpassed this number, हाँ. but like ये करना है. So and जब भी पैसा देते हैं वो इसी चीज के, so for them we created the CSR arm. हाँ. एंड तो उससे हमने ट्रेनिंग शुरू करी, हाउ टू इम्प्रूव देयर कैपेसिटी, प्रोडक्शन एंड एवरीथिंग. एंड 3 साल से हम ट्रेनिंग्स कर रहे हैं, तो पैसा आ ही रहा है. मतलब हमने डिसाइड किया प्रॉफिटेबिलिटी का, तो ये तो हम कमाते हैं, दिस इज ओवर एंड अबव दैट वी गेट. सो नाउ द नेक्स्ट मूव दैट वी वांट टू डू, हमने ये भी ज्योग्राफिकली देखा कि हमारे पास जो लेडीज हैं, so for all the NGOs that were listening, see where you can use your donation money. मना मत करो उसको, लो उसके लिए भी एफर्ट दो, बट how you can use it. So how are we doing it is, हमने आइडेंटिफाई किया कि या तो हमारे पास लड़कियां आती हैं या औरतें आती जिनकी शादी नहीं होती दैट टाइम, जब तक शादी का वेट कर रही हैं वो, और या फिर आती हैं लेडीज जिनके बच्चे थोड़े बड़े हो चुके होते हैं, बट बाय देन दैट फीमेल हैज गिवन बर्थ टू एटलीस्ट 3 kids एंड शी इज इन सम काइंड ऑफ डेट. ठीक है, अगर जो ठीक होती होती है वो नहीं आती, शी इज इन सम काइंड ऑफ डेट, सम परेशानी. सो वो एक तो दिमाग से स्ट्रेन्ड होती है, फिर घर जाके उसको बाकी सब चीज़ों का ध्यान रखता है, तो टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज. What we are missing out is that young female who just got married and then within a year had a bacha, but she can't come because she has a bacha. So now we identified something called mobile crash. There is an NGO which runs जहाँ पे ऐसे इन जगहों पे क्रैश कैसे चलाना है वो सिखा देते हैं. अब हम चाहते हैं कि वो क्रैश लग जाए और वो बच्चे भी आ सके और मदर्स भी आ सके. So from that early age she is self. So you're using the donation money for that. For those kind of things, yeah. So that's my next pitch to my donors कि हम 15 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, whatever it takes, ये हमें इतना हमें लगेगा तो आप हमें कर दीजिए और हम इससे क्रैश चलाएंगे. साल 2 साल 3 साल मे बी वी वुड नीड दैट मनी. आफ्टर दैट दिस पैसा बिजनेस निकालेगा उसका पैसा. हाँ, यू डोंट हैव टू डू इट फॉर लाइफ लॉन्ग. So this is how one can think of progressively using that money. तो उसको देने से ना डोनर्स को प्रॉब्लम नहीं होती, because then they know कि अच्छा ये इस चीज के लिए साल 2 साल के लिए जा रहा है. But if you are giving it to whatever examples you shared, तो भाई मुझे कब तक देना है, मैं कितने और दिन तक देना चाहता हूँ. Now we started a program where we are creating mid-level managers, उन्हीं और leaders. इसमें एक चीज है यार, you know, when you were speaking, I was just thinking, ये इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज आई हैव सीन पीपल रनिंग NGOs rather than they'll support it with money. I think more than that we need people who are ready to jump in the way you did. You know, till the time bright people who are from corporate background and business backgrounds don't jump in. जिनका social background था वो आ गए, I don't think that they will make an impact. With a business background, if they jump in and their skin in the game is there, rather than कि यार महीने के 50,000 रुपए निकाले और दे दिए, it won't happen. So like what you're saying is definitely making sense. देखो हम जैसे हैं we attract similar. अगर मुझे चाहिए कि सस्टेनेबल मॉडल बने, then I attracted Rohit Sareen and Meeta Sareen. No, they said कि that's a different thing. They are supporting you, but you are in the middle of running the show. Correct. So, तो एक टाइम पे मेरी भी हालत थी जहाँ पे नहीं, मगर जो ज्यादातर रन द शो कर रहे होते हैं वो कोई बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं आए होते. मतलब इन द सेंस कोई कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से नहीं आए होते. वो होते हैं कि चलो और कुछ नहीं है, हमारा बस पैशन है और उसमें हम लग जाते हैं. हाँ, बट टिल द टाइम मेन स्ट्रीम पीपल डोंट कम इनटू इट एंड रन इट एज अ बिजनेस, दिस वोंट हैपन. पर मेन पैशन से नहीं सिर्फ होगा ये. पैशन से तो होगा ही, मतलब सिर्फ पैशन. देखो दोनों चीजें, बिना पैशन के ये ग्राउंड पे जमे रहना नहीं आएगा. ठीक है, जिसका घर आप जैसे बोल रहे हो कि जो बिल्कुल ही बुरी हालत में पहुंच चुका है लेकिन वो फिर भी अड़ा हुआ है कि मेरे को डॉग शेल्टर चलाना है, वो पैशन है और वो नहीं आएगा. बट द थिंग इज बैलेंस. आई कॉल अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन माई लाइफ इज बैलेंस. समटाइम्स आई गेट टू स्वेड विद वर्क, देन आई एम बीइंग टोल्ड विद माई फैमिली कि थोड़ा इधर देखेंगे, एंड सम हालात हैपेंस वेयर माई किड विल मेक श्योर दैट ओके आई नीड अटेंशन. सो देन देयर इज बैलेंस. Again, profitability and social angle also balance. So same with those people. Mainstream के लोग आने वाली बात कुछ नहीं है. अगर देखो इंडिया में ही
काफ़ी ऐसी चीज़ें. हाउ डिड आई गेट दिस ऑल दीज थिंग्स? I am Bangalore. I did about 3 courses with I am Bangalore, and I didn't pay a penny on the social entrepreneurship. उन्होंने एक पूरा इम्पैक्ट सर्कल बना रखा है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, और वो सब सारी चीज़ें एक्सेस कराते हैं. तो ये यू जस्ट हैव टू गो एंड अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई कर दो, उसके बाद तो फोन करके दे विल कॉल You यू. had a lot of impact, or I would say a lot of inspiration from your family. आपके फैमिली में लोग 25-30 साल, पता नहीं कितने सालों से कर रहे हैं कुछ ना कुछ सोशल इम्पैक्ट, बट इट इज नॉट नॉर्मल एंड नेचुरल फॉर मोस्ट पीपल. You know, it is like donation is still Is normal easy. and natural, Easy. but doing the work themselves is not normal and natural. देखो, इस पे दो बातें. इफ आई एम गेटिंग योर हाँ. थिंग राइट, ठीक है, अगर मैं बहुत अपना जेन्युइनली अपना बिजनेस चला रहा हूँ, ठीक है, मैं जो भी हूँ, एक विपिन सूरी, मैं अपना एक बिजनेस कर रहा हूँ, वो करो, और मेरे पास कुछ पैसे हैं विच आई टू सेटिस्फाई माई सेल्फ कि हाँ मैं पैसे भी कमा रहा हूँ एंड ये इतना कुछ मुझे दिख रहा है, ओके, आई फाइंड सम जेन्युइन पीपल एंड आई डोनेट टू देयर कॉजेज कि ये जेन्युइन है, ठीक है. सो दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट. दी अदर, अगर हम इसको बिजनेस, इसमें कि देखो, मैं अगर इसको देखती हूँ, गाँव, आई डिड माई टेड टॉक एंड आई सेड दिस इज बिजनेस. अगर एक औरत बैठी हुई है, हम सब बोलते हैं एट्रिशन बहुत है, लोग छोड़ के जाते हैं, ये है वो है, लेबर ध्यान नहीं देती, काम नहीं करी, बहुत लोग बोलते हैं लेबर ध्यान दे रही. मैं ये बोल रही हूँ, मैंने टेड टॉक दी कि अगर आपने उस औरत को, जिसको वेकेशन नहीं चाहिए, जिस औरत को सिर्फ अपने घर में पंखा लगाना है, जिस औरत को अपने बच्चे को सिर्फ स्कूल भेजने के पैसे चाहिए कि मेरे जब बच्चा स्कूल जाए उसके पैरों में जूते हों, जिस औरत को ये चाहिए कि मेरे बस थोड़े इतने पैसे हों कि मैं 3 टाइम का खाना आराम से दे सकूं, एक ठीक से छत हो, छत लीक ना करे, इफ यू कैन हायर दैट विमेन, you will not have a problem of attrition. It is like identify the business aspect there and create a business out of it. तो तुम एनजीओ को मत सोचो, तुम ये सोचो कि ये प्रॉब्लम है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, या मेरे को कुछ बिजनेस करना है तो मैं उसको कैसे करूँ. तो जब जो भी कहता है कि लेबर नहीं मिलती, भाई गांव में जाके फैक्ट्री डाल दे यार, कोई दिक्कत नहीं है, वहां पे लोग ही बैठे हुए हैं, आ जाएंगे सब लोग, क्या दिक्कत है. सो बट मेक बी लिटिल दैट अनकंफर्टेबल कि तुझे रोज जाना पड़ सकता है, डू दैट. मुझे तो वो भी नहीं करना पड़ता अब. हाँ. एंड अब मैंने अपने घर के सभी लोगों को, माई मॉम वॉज देयर टू सपोर्ट मी एज इन, लाइक सपोर्ट तो सभी करे, बट शी वॉज देयर द प्रोडक्शन सेंटर बिकॉज शी इज वेरी गुड विद पीपल. तो जब काम करवाना होगा तो कुछ, नाउ वी हैव पुट सिस्टम्स एंड आई सेड मॉम, यू, आई डोंट नीड यू एज वेल, लाइक स्टे अवे, ऑल ऑफ अस दिस हैज टू रन ऑन ऑटो पायलट, क्योंकि अगर हम 5-10 लगाने हैं तो हम कितनों पे भागेंगे, या कोई भी कितनों पे भागेगा. सो लाइक हाँ ठीक है, ये बात भी सही है. सो सारे बिजनेसेस ऐसे ही चलते हैं. सो टेक इंस्पिरेशन ऑफ बिजनेस कैसे चलता है एंड रन, एंड जेन्युइनली रन रादर देन, हाँ मतलब कोई भी कंप्लेन करने से, इवन फॉर बिजनेसेस दे डू सो मच कंप्लेन्स ना, कि तो कंप्लीट की जगह देखो कि ये मेरा बॉटलनेक है, ये कहाँ से सॉल्व होगा, ये यहाँ से सॉल्व होगा, तो मैं यहाँ से सॉल्व कर देता हूँ. सो वो बंदी जो गाँव में बैठी है ना, वो तुम्हारे लिए इसलिए नहीं काम करती कि आज वो थोड़ी सी सीख लेगी और कल वो अपना बिजनेस खोल देगी. वो उसको काम चाहिए और उसको लॉयल्टी चाहिए, वो लॉयल्टी के लिए तुम्हारे साथ है, शी वुड डू वट एवर. सो तुम्हें आदमी ही चाहिए, तुम्हें ऐसे ही चाहिए, तुम्हें यहीं पे ही चाहिए, गो इन देयर हाउस एंड गेट, लाइक काम करा लो. हम तो घरों में जाके बोलते हैं कि आजा चल, क्यों छुट्टी क्यों ले रही है, कम सिट, लेट्स गेट दिस ऑर्डर आउट, एंड शी से हाँ ठीक है, लेट्स गेट दिस ऑर्डर आउट. That's so great, you know, so inspiring. I have a last question. Yeah. आपके जो peers हैं from school, college, family circle and all of that, how much do, I'm sure they must be inspired by what you're doing, but don't they try to impact your mind कि ये क्या कर रही है तू, अगर तू corporate life में continue करती है, अभी भी आ जाए तो you will make so much money. वो ये होता होगा, इसको handle कैसे करते हो? So I think if I can make this question raw, it will be you see your peers going in like at that level. How does that make you feel somewhere? And how does the others make you feel about it? नहीं, मैं तो others वाला ही बोलूँगा. Both ways. चलो आप बताओ. दोनों बताती हूँ मैं. So मतलब दो ही लोग हैं जिनको लगता है कि यार अगर तू हार्वर्ड से पढ़ के आई है या तूने यूएस से जो भी किया है, आई डिड कोर्स फ्रॉम हार्वर्ड ऑल्सो, और ये सब, तो यू कैन डू मच बेटर देन व्हाट यू आर डूइंग एट द मोमेंट. एंड तो वो है मेरे डैड और माई हस्बैंड.
अच्छा ये दो लोग हैं वो सपोर्ट भी करते हैं, पर फिर वो पीछे से बोलते हैं नौकरी भी देख लेती तो कोई दिक्कत नहीं हाँ। थी. Because sometimes the passion takes over yeah and we work over then our body capacity. हालांकि मेरी बॉडी सपोर्ट कर देती है, बट उनको हाँ, ऐसा लगता है उनको कि ऐसा ज्यादा लगता हो रहा है. बट वो बोलते हैं, लेकिन अब ये सब चीजें ना, और आई एम वेरी प्राउड, सम ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स, दे आर नाउ डायरेक्टर्स इन EY. Ashwin Anand, she's CFO Starbucks. So a lot of friends are there, और उनको देख के खुशी भी होती है. वो अभी तक कोई दोस्त ने तो कभी नहीं बोला कि हाँ. व्हाट यू आर डूइंग, बल्कि वो जब सोशल बोलते हैं तो मैं कहती हूँ यार बिजनेस करिए. आई एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग एंड इट इज बिजनेस एंड आई लाइक टू कॉल इट लाइक दैट. वहां पे भी कुछ नहीं आया, बट पिछले right after COVID onwards, getting award from UN, getting acknowledgement, being a TED Talk speaker for a very meaningful conversation, not मतलब हाँ, not just about anything कि कुछ सच में कि हाँ ये, and now working with Apollo Tyres, इस तरह के कुछ अच्छे ब्रांड नेम्स जब जुड़ते हैं, और अभी हैं और 3-4 इन द लीग, ईशा फॉर दैट मैटर. So much happened, like not that I can't share everything on air, but so much happened, ये मुझे नहीं मिलता. And इसमें दोनों बातें. So my brother, he's in US, 3 साल छोटा है, तो मैंने उसको पूछा एक दिन, यार तेरा नहीं मन करता कभी सोशल करने का या कुछ ऐसे? So कहता करूँगा, जरूर करूँगा, पर मर्सिडीज में बैठ के करूँगा ना. ये सोच आई. मैंने कहा यार मैं क्या, am I not living that life? That or am I missing, like I should not miss anything on life because I'm doing a social thing. So that is also the family सिखाती है अच्छे से. So that was there, and then I said when I had my TED talk, my brother would call me 3 times a day. Prepare हो गई, याद हो गया, सब अच्छे से करेगी, how did it go? Because he doesn't, like he missed that part कि यार ये मेरी बहन जा रही है और ये बोल रही है TED talk में, because it needs something. I know. So and UN से award मिलना, it means something. It's a big deal. So and my next aim is to have a seat at the table with UN, because जहाँ पॉलिसीज बन रही है मुझे वहां पे जाना, ये बताने के लिए कि आप इसको ऐसे बनाओगे तो ज्यादा इम्पैक्ट आ जाएगा, वही पैसा थोड़ा बेटर हो जाएगा. So I want to do so much more, and like a PhD with Ivy League. So that's the next, that's coming up. But तो मेरे को जो माइलस्टोन्स मिले हैं पिछले 10 साल में या 5 साल में, थोड़े ज्यादा, आई एम बैंगलोर से या गोल्डमैन सैक्स से जो कोर्सेज मैंने किए, दे स्पॉन्सर्ड माय कोर्स. दिस आई वुड नॉट हैव गॉट इन EY, otherwise आई वुड नॉट हैव गॉट इन एनी अदर थिंग. एंड तो अब कोई मैच ही नहीं होता किसी के साथ भी. तो शुरू के 5 साल 6 साल तो मेजर स्ट्रगल था लाइफ का, बट उसके बाद जो रिटर्न्स हैं, that's huge. those are like priceless. Can't match in any way. I love when I say Ashwin, CFO Starbucks, yeah, we want to do bags, we want to do a project. So now I don't say bags, I say we want to do a project, sustainable project. And she takes immense pride in connecting me to the sustainable team. Yeah. And she's like, हाँ ठीक है, तो वहाँ टीम से बात हो रही है. मुझे नहीं पता अदरवाइज हो पाती या नहीं हो पाती, या ये सोच मैं किसी और के थ्रू ऐसे इस तरह से करती कि सस्टेनेबिलिटी ऐसे लाएंगे वैसे लाएंगे. सो वी आर वर्किंग विद सम बिग कंपनीज, अल्कोहलिक कंपनीज, ये बेवरेज कंपनीज ऑल्सो, कि आपके सस्टेनेबिलिटी एंगल्स को ऐसे करेंगे. दिस इज डिफरेंट. आई एम इन अ डिफरेंट माइंडसेट एंड क्राउड एंड लीग, एंड आई एम सो हैप्पी कि बाकी लोग का वहां तक पहुंचना हो, या सोचनी होगी, या पहुंच नहीं पाएंगे, या मतलब घर बच्चे पल जाएं, इतने पैसे आ जाएं कि बाहर भेजने के लिए पैसे हो. लाइक दैट्स व्हाट इट इज. वी आर I think we'll name this podcast Star Social Entrepreneur, so that people get inspired to follow the passion and do it as a business. Whichever way. Like I want to do PhD to one of the Ivy League, maybe like a Stanford or something. My concept is so meaningful that I have the determination and the clarity कि मुझे मिल जाएगा. क्योंकि शायद सब, अगर कोई रन ऑफ द मिल का कॉन्सेप्ट लेकर आएगा तो उसको शायद नहीं मिलेगा. But I have it and I would get it, and then that's what makes me unique. And फिर कहीं मैच ही नहीं होता ना कि क्या कर रहे हो, like. And brilliant. Thank you so much, Arya. And I wish and hope that people learn from this podcast, learn from your journey, and we wish that you get the PhD and you actually get a seat in the UN, or you become the chairman of the UN.
so that we have some sensible people running the world. We have too many sensible people. It's just that social angle can be tweaked in a better way I and get know. better results. So yeah, that's what I would love to contribute through my life that God has given me. This is what I enjoy doing. And thank you for inviting me. This was a beautiful conversation. I also didn't come prepared कि क्या होगा, मैं कहा जो होगा सो होगा. But thank you for getting the best out of me and Thank my you. memory lane also and the future Future as well. also. So this is Yeah. brilliant. Thank you everybody for watching, and whatever you liked, do comment on this thing, and if you want to connect with Arya, do write us a message. Yeah, Thank you so much. Yeah, iVillager Family is the organization if you want to learn more. We'll put all the details. Yeah, in the sure. website. Thank you so Thank much. you.